میرے ساتھ دیکھیے خداوند کا زندہ کلام نیا عہد نامہ متی رسول کی انجیل، اس کا 28 باب، اس کی 5 آیت سے لے کر 8 آیت تک دیکھیں گے کہ خدا کا کلام آج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جو نکال لے کہیں آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے متی 28:5 میں، فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ کلام خدا کے پڑھے سنے جانے پر ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ سب بولے آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو میرا مضمون ہے کلام خدا کا، جی اٹھا یسوع کہاں ہے؟ آج ہم اس پر غور کریں گے کہ جو آج عنوان ہے کلام کا، جی اٹھا یسوع کہاں ہے۔ آج ہم نے یسوع کو ڈھونڈنا ہے کہ یسوع تو جی اٹھا ہے، لیکن یسوع ہے کہاں؟ میرے عزیزو، بہن بھائیوں، دور حاضرہ میں جی اٹھا یسوع نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں لوگ روحانی مردگی کا شکار ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں جی اٹھا یسوع کام کرتا نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک خداوند یسوع مسیح کو میں جانتا ہوں، وہ لوگوں کی زندگی میں ایک کام کرتا تھا، معجزات کرتا تھا، شفائیں دیتا تھا، زندگیوں کو تبدیل کرتا تھا۔ دور حاضرہ میں میرے عزیزوں زندگیوں میں معجزات نظر نہیں آ رہے، شفائیں نظر نہیں آ رہی، زندگیاں تبدیل نظر نہیں آ رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جی اٹھا یسوع زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیزو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ۔ اگر ہم مردہ ہیں تو اس کا واضح نشان یہ ہے کہ ہم قرض کے نیچے ہیں، ہم لعنت کے نیچے ہیں، ہم بے برکتی کے نیچے ہیں، اور ہم خدا کے گھر سے دور ہیں۔ کیا وجہ ہے جی؟ ہم خدا کے گھر سے دور ہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو پھر تنگ دستی میں بلکہ خوشحالی نظر نہیں آ رہی۔ اگر یسوع ہماری زندگی میں زندہ ہے تو پھر شادمانی ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ خوشحالی کیوں نہیں ہے؟ پریشانیوں نے ہمیں کیوں گھیرا ہوا ہے؟ ہم کہتے تو زندہ ہیں لیکن ہے کیا ہے؟ مردہ۔ میرے عزیزو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اٹھا یسوع کہاں ہے؟ کیا آج ہماری زندگی میں جی اٹھا یسوع نظر آ رہا ہے؟ بتائیے ذرا، جی اٹھا یسوع، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اٹھا یسوع پھر کہاں ہے؟ میرے عزیزو، اگر جی اٹھا یسوع مجھ میں اور عام میں نظر نہیں آ رہا تو آج ہم اس کی عید قیامت المسیح منا رہے ہیں۔ کس لیے پھر ہم منا رہے ہیں جب ہماری زندگی میں یسوع مسیح نظر ہی نہیں آ رہا؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ مردہ ہے، وہ پریشانی کا شکار ہے، وہ دکھوں کا شکار ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آج تک ہم نے اپنے وقت کو ہی ضائع کیا ہے۔ میرے عزیزو، جی اٹھا یسوع کہاں ہے؟ آج ڈھونڈیے اسے کہ جی اٹھا یسوع ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا۔ خدا کا بندہ
पतरस कहता है कि मैं किसके पास जाऊं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो क्या है, तेरे पास हैं। लेकिन आज हम किसके पास जा रहे हैं? आज क्या जी उठा यीशु हमारी जिंदगी में काम कर रहा है? हम देखते हैं पौलुस और सिलास को, वो कैद खाने में हैं, वो हमद के गीत गा रहे हैं, वो परेशान नहीं है क्योंकि उनकी जिंदगी में जी उठा यीशु मौजूद है। वो कैद खाने में है लेकिन हम तो सुना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, खुशहाल हैं। लेकिन आज क्या वजह है कि हम परेशानी का शिकार हैं? जी उठा यीशु आज हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं दानियल नबी की किताब में, तो बादशाह ने निविष्टा एक लिख दिया, साइन कर दिए कि मेरे सिवा किसी और के पास कोई दरखास्त नहीं कर सकता, किसी और से कोई बात नहीं कर सकता। तो दानियल जो था वो 3 मरतबा एक दिन में क्या करता था, वो दुआ करता था। जब उसको पता चल गया कि निविष्टा लिखा गया है, लेकिन उसने अपने वक़्त के मुताबिक, उसी रूल के मुताबिक वो खुदा की हजूरी में झुकना शुरू कर दिया। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में जी उठा यीशु नजर आता है तो फिर डर खत्म हो जाता है। जब यीशु मसलूब किया गया, यीशु को दफनाया गया, तो जो शागिर्द थे वो गुम हो गए, उन्होंने दरवाजे बंद कर ले, उनकी जिंदगियों में डर था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह जिंदा हुए तो शागिर्दों में क्या आ गई, ताजगी आ गई, डर जाता रहा। वही पतरा जो दरवाजा बंद कर लेता है, वो कलाम करता है, तो एक वक्त में 3-3 हजार 5-5 हजार लोग तौबा करते हैं। ये तब होता है जब हमारी जिंदगी में यीशु जी उठता है, वैसे नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, जब दानियल को पता चला कि ये जो निविष्टा है लिखा गया है, लेकिन उसने क्या किया, वो डरा नहीं है, वो घबराया नहीं है। उसने वही अपने टाइम के मुताबिक दिन में 3 दफा क्या की, दुआ की। जब उनको पता चला तो बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि इसको शेरों की मान में डाला जाए। लेकिन वो डरा नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु जी उठा था। उसकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा था, उसकी जिंदगी में खुदा था। तो जब शेरों की मान में डाला गया और शेरों ने उसको मुंह ना लगाया, क्यों? कि वो जिंदा खुदा को मानता था। हालेलुया! किसको मानता था? जिंदा खुदा को मानता था। उसकी जिंदगी में डर नहीं था। लेकिन आज हम खुदा के घर में भी आए, घबराए बैठे, खौफजदा हैं, तो हमने दूसरे लोगों को खुदा की खुशखबरी जी उठने की कैसे बताएंगे? जब बादशाह सुबह को आवाज देता है दानियल को, तो दानियल आगे से आवाज देता है, क्योंकि उसका खुदा क्या था? जिंदा खुदा था। वो बचाने की एक कुदरत रखता था। क्या वही खुदा हमारे साथ नहीं है? हाँ जी बताइए, क्या वही खुदा हमारे साथ आज काम नहीं कर रहा? करता है ना। वजह क्या है कि हम में आज ढूंढिए कि जी उठा यीशु कहाँ है। जिन लोगों ने बताया था बादशाह को, जब उनको, उनकी फैमिलियों को शेरों की मान में डाला गया, तो शेरों ने उनको फाड़ दिया, उनकी हड्डियों को तोड़ दिया। वजह क्या है कि कलाम खुदा हमें सिखाता है कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? गुलाम बनाएगी। हाँ जी, क्या करेगी? आजाद करेगी। वो सच्चाई से वाकिफ था, उसकी जिंदगी में डर नहीं था। उसको पता था कि जिसको मैं मानता हूं वो मेरे साथ है। लेकिन आज हम पता नहीं तवक्कल तो करते हैं खुदावन पर, किस तरह का तवक्कल करते हैं, किस तरह का भरोसा करते हैं कि हमारे घरों से परेशानी ही नहीं जा रही, दुखों ने डेरा लगाया हुआ है। तो कहते हैं कि जी
उठे यीशु की हम मनादी करते हैं, जी उठे यीशु को हम मानते हैं। कैसा जी उठा यीशु हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आज मेरे अजीज़ों गौर कीजिए कि जी उठा यीशु कहाँ है। जब हम गलीतियों में देखते हैं उसके 2 बाब उसकी 19 आयत में, तो पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु जी उठा था। वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में एक काम करता है, मसीह मेरे साथ साथ चलता है। क्या हमारे साथ खुदा नहीं चल सकता? क्या मेरे और आपके साथ खुदा वही काम नहीं कर सकता? क्या मेरे और आपके साथ खुदा रफाकत नहीं रख सकता? तो आज क्या बात है कि वो जी उठा यीशु कहाँ है? मेरे अजीजों गौर कीजिए। मेरे अजीजों जब हम इमाल की किताब में देखते 5 बाब में उसकी 27, 28, 19 आयत में 29 आयत में देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि पतरस को मना किया गया, रसूलों को मना किया गया, उन्हें तकीद की गई। सदर अदालत ने, सरदार खान ने उनसे कहा कि उसका नाम नहीं लेना। किसका नाम नहीं लेना? बताइए जरा। हाँ जी, किसका नाम नहीं लेना? पतरस को मना किया गया, रसूलों को मना किया गया। सरदार खान ने उनको कहा कि उसका नाम नहीं लेना। किसका नाम बताइए जरा। हाँ जी, किसका? यीशु का। लेकिन मेरे अजीजों उन्होंने जब सुना भी था, लेकिन तमाम यरूशलेम में खुदा यीशु की तालीम को फैला दिया था। हालेलुया। वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं कि सरदार खान हमारे साथ क्या सलूक करेगा। उसने तकीद की थी, लेकिन उसने उसकी तकीद को नहीं, बल्कि उसने कहा हमें आदमियों की हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हालेलुया। उन्होंने आदमियों की परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि खुदा का हुक्म मानना ज्यादा हमारे लिए क्या है? फर्ज है। लेकिन मेरे अजीजों आज हम किसके फर्ज को मान रहे हैं? हम जी उठे यीशु को कहाँ जगह दी हुई है? क्या यीशु हमारी जिंदगी में जी उठने का इरादा नहीं करता? क्या हम उसको वेलकम नहीं कर सकते? बताइए जरा। हम आज कौन सी ईद मना रहे हैं? ज्यादातर लोग चुप के, उन्होंने पता ही नहीं आए खुदा दे घर से। चलो मेरा तो गला खराब है, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ प्रॉब्लम? हम किसकी ईद को मना रहे हैं? यीशु मसीह के जी उठने की। तो मेरे अजीजों यीशु मसीह जो जी उठा है, आज हमसे सवाल है वो कहाँ है? यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आना चाहता है, वो हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है। यीशु मसीह जिसके साथ है, उनकी जो कर्जों की लानत है, जो बेबरकती की लानत है, जो तरह तरह के और मसले मसाइल हैं, यीशु मसीह के नाम से जाते रहते हैं। तो आज ढूंढिए कि क्या आज तक मैंने अपने दिल को खुदावंद को दिया है, या वैसे ही वक्त गुजारा कर रहे हैं? मेरे अजीजों, शागिर्दों को जब पता चला कि यीशु मसीह मसलूब हो गए हैं, उन्होंने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया। हाँ जी, क्या किया था? दरवाज़ों को बंद कर लिया था, कहीं हमें भी ना पकड़ ले, कहीं हमें भी मसलूब ना कर दे। लेकिन जैसे यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठे, बहनों को ने खुशखबरी दी कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक क्या हुए हैं? जी उठे हैं। तो मेरे अजीजों गौर कीजिए, क्या हमारी जिंदगी में यीशु मसीह वाकई जी उठे हैं, या हम बस गली बाती हैं? गौर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसका वाज़िया निशान ये है कि जिनकी जिंदगियों में यीशु मसीह जी उठे हैं, उनके घरों में बरकत है। हालेलुया।
वो कर्जे लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होंगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह जिनकी जिंदगियों में जी उठा है, उनके बरकत से घर भरे रहेंगे। जिनकी जिंदगियों में यीशु जी उठा है, अगर यीशु जी उठा नहीं है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि वो कर्जों की लानत के नीचे हैं, वो कर्जों के नीचे हैं, वो लानत के नीचे हैं, वो बेबरकती में पड़े हैं। बरकत नहीं नजर आ रही, जितना मर्जी पैसा रुपया कमा ले, लेकिन बरकत कहीं से नजर नहीं आती। अगर थोड़ा भी कमा लेंगे तो यीशु आपके साथ है, तो आपका बाहर जाना अंदर आना भी क्या होगा जी? मुबारक होगा। तब होगा जब आपकी जिंदगी में यीशु जी उठेगा। ये जो दिन हम मना रहे हैं यीशु के जी उठने का, ये तब पूरा होता है कि जब मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु जी उठे। हालेलुया। ये आपकी बरकत के वसीला से पता चल सकता है। हाँ जी। तो जो अगर परेशानियां आज भी हमें घेरे रखी हैं, दुखों में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो कहते हैं कि यीशु मेरी जिंदगी से जी उठा है। ये मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मोहब्बत है। यीशु क्या है जी? तो यहाँ यीशु हो तो फिर लड़ाई झगड़े कहाँ गए जी? हाँ जी। अगर यीशु हमारी जिंदगी में जी उठा है तो फिर झूठ हम क्यों बोलते हैं? सवाल है। अगर यीशु हमारी जिंदगी में जी उठा है तो फिर हम गाली गलौज क्यों करते हैं? अगर हमारी जिंदगी में यीशु जी उठा है तो फिर हम और तरह तरह की बातों में क्यों फंस जाते हैं? यीशु तो राह हक क्या है? जिंदगी है। तो फिर आज हम क्यों भटके हुए हैं? यीशु हमारी जिंदगी में जी उठा है तो फिर हम बुग़्ज़ क्यों रखते हैं? एक दूसरे से नफरत क्यों रखते हैं? हाँ जी। यीशु हमारी जिंदगी में जी उठा है तो फिर बुग़्ज़ कहां से आ गया? नफरत कहां से आ गई? सहदिली कहां से आ गई? उल्टे सीधे अल्फाज कहां से आ गए? अगर यीशु जी उठा है तो गौर कीजिए, बच्ची को छोड़ें। अगर यीशु जी उठा है तो फिर आज ये इस तरह की बातें क्यों हमारी जिंदगी में भरी पड़ी हुई हैं? एक दो नहीं बल्कि भरी पड़ी हुई हैं। अगर कोई बाहर कोई आ गया ना, वैसे ही बेशक मिलन आया है, सानू डाउट होए ना कि वही आ रहा है, तो बच्चे ने कह देना कि पापा कह रहे हैं घर नहीं है। तो बच्चे बड़े कई ऐसे मासूम होंगे जाके डायरेक्टली कह देंगे कि पापा कह रहे हैं जी घर नहीं है। हाँ जी। कैसा सच बोला हमने? बच्चा हमसे बेहतर है जो सच बोलता है। यीशु हमारी जिंदगी में जी उठा है तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? रहते हैं एक घर की छत के नीचे हैं, 2-3 फैमिलियां रह रही हैं, तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। बहन बहन से नहीं बोल रही, भाई बहन से नहीं बोल रहा। हाँ जी। तो यीशु हम कहते हैं मेरी जिंदगी में क्या हुआ है जी? क्या हुआ जी? बोले जरा मुझे बताएं, यीशु क्या हुआ जी? जी उठा है। कैसा यीशु है जो जी उठा है? यीशु मसीह ने तो हमें हलीमी का दर्श दिया है। यीशु मसीह ने तो हमें फरोतनी का दर्श दिया है। अगर यीशु जी उठा है ना, तो जिंदगी में तो फिर शादमानी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शादमानी होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। यीशु जी उठे तो असी अज भी बीमारियां दे विच मुबतला हां जी। अज भी घर लड़ाई झगड़े चारे, तो अपने कपड़े लै ले तो मैनू लैके नहीं दिते। हाँ जी। यीशु इस तरह जी उठता नहीं है। आज हम यीशु के जी उठने के दिन को क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। जिंदगियों पर गौर कीजिए कि यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में कैसा जी उठा है। हाँ जी। दरानी जठानी नूं नहीं बुलांदी। हाँ जी। भरा अपने रिश्तेदारां नूं नहीं बुला रहा, तो कहना मैं तो पादरी हाँ, यीशु मेरे से जी उठा है जी। कैसा यीशु जी उठा है? सवाल है मेरे समेत हम सभी से कि जिसके हम आज जी उठने के दिन को मना रहे हैं, कैसा वो जी उठा है? यीशु ने तो कहा है बाप इनको क्या कर? माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਲੰਘ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹਿਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ੍ਹਾ ना भी होए। ऐसा हमारी जिंदगी में यीशु जी उठा है। कैसी बात है। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ जल्दी होए वैसे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ गल पै जाते। हाँ जी, ऐसे इस तरह का यीशु जी उठा है। इस तरह का यीशु जी उठना चाहिए जी। बताइए, कलीसिया से सवाल है। जिस तरह की मैंने बात की है, इस तरह का यीशु जी उठना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। किस तरह का जी उठना चाहिए। हमें मोहब्बत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रफाकत रखनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ बर्ताव करना चाहिए। अगर तुम मोहब्बत रखते तो इसका मतलब कि तुम खुदा के शहीद हो। हाँ जी, इससे साबित होता है आपके बोल चाल से, आपके उठने बैठने से, आपकी गुफ्तगू से। हाँ जी, असी अपने बच्चों ने नहीं प्यार मोहब्बत ना बोलते तो दूसरे ने किस तरह की मोहब्बत रखेंगे। आज हम क्या मना रहे हैं जरा बताइए सारी कलीसिया। हाँ जी, क्या मना रहे हैं। किसी को नहीं पता, सिर्फ मैनू ही पता क्या मना रहे हैं आज हम। मून भाई बता रहे पीछे से, तो जेडे अंदर बैठे हो सुनी जा रहे, पता को नहीं की कह रहे हैं। हाँ जी, क्या सुना है हमने। यीशु के जी उठने के दिन को मना रहे हैं। तो इस तरह का नहीं मनाना चाहिए, इस तरह का कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे के साथ अगर प्यार मोहब्बत ही नहीं तो कोई नहीं यीशु हमारी जिंदगी। हम झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे के साथ नफरत रखते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि यीशु मेरी जिंदगी में है। ऐसा नहीं है। हम सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, सब आंखें बंद हो जाएं, छोटे बड़े खुदा की तज़ीम में अपनी आंखों को बंद करें। कादर मुतली खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदावंद, आज तेरे जी उठने के दिन को हम मना रहे हैं, तो आए खुदा तेरी हजूरी में मिन्नत गुजार हूँ कि आज एक एक ज़िंदगी में तू जी उठ। आज आए खुदावंद बुग़्ज़, नफ़रतें, आए खुदावंद झूठ और झूठ की ऐसी तस्वीरें जो तेरे पास आने नहीं देते, यीशु के नाम में जाते हैं, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ तेरे जी उठने के दिन को सेलिब्रेट कर सके और हमारी ज़िंदगी में आए खुदा तेरा नाम जलाल पाए। ईमान के साथ ये दुआ मांगते हैं, आमीन।